So, good evening. Welcome to MR classes. We will start new topic today, that is temperature interpretation of the kinetic energy. Some part we discussed in last class, that about the average velocity, RMS velocity, and most probable velocity. How kinetic energy and the actually energy of the molecule of the gases depend on temperature, that we will discuss in this class. So, temperature interpretation of temperature interpretation of KTG, kinetic theory of gases. So, in last to last session, we discussed about the pressure exerted by the gases on any wall of the container. What is the formula? Pressure P equal to 1 upon 3 rho V बार का स्क्वायर. ये हमने लिया था रो वी बार का स्क्वायर. हम लोग क्या ले सकते हैं? रो वी बार, रो इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वेलोसिटी. मास अपॉन वेलोसिटी. सो P इक्वल टू 1 upon 3 m upon v इंटू म्यू बार का स्क्वायर. ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है. तो हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको इधर भेज दें क्या? P इंटू वी, पी वी इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा? m v बार का स्क्वायर. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 यहाँ पे लिख दें और क्या लिख दें? 1 अपॉन 2 लिख दें. कोई फर्क पड़ेगा? 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस molecules. So P into V by ideal gas equation. By gas equation. What is gas equation, Kuldeep? Gas equation क्या होती है? PV equal to nRT. और for 1 mole, PV equal to RT. This one is the equation 1. This one is the equation 2. Can I replace PV with the RT? Yes or no? Yes. So here PV equal to RT equal to 2 upon 3. This is kinetic energy E. This is kinetic energy E. So what is E? E equal to 3 by 2 RT. 3 by 2. This is the average kinetic energy. Average kinetic energy. Average kinetic energy. अब अगर ये पूछ ले पर मोल, ये किसके लिए बेटा? पर मोल. और एन मोल क्या हो जाएगा? हर्षिता, एन मोल के लिए क्या होगा बेटा बताओ? E इक्वल टू 3 by 2 nRT. This is the average kinetic energy of the given gas molecules. If they ask about average kinetic energy of per molecule, average kinetic energy of the per molecules कैसे निकालेंगे? This is total energy, total average total energy, that is average total energy, that is 3 by 2 RT. Energy per molecule, energy per molecule. How you will find energy per molecule? कैसे फाइंड करोगे बेटा पर मोलिक्यूल एनर्जी? E डैश इक्वल टू टोटल एवरेज एनर्जी अपॉन n. नंबर ऑफ मोलिक्यूल से क्या कर दीजिए? डिवाइड. नंबर ऑफ मोलिक्यूल से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सो हियर E डैश इक्वल टू 3 by 2 R upon n into T. What is R upon n? बोल्ट्जमान कांस्टेंट. डिस्कशन लास्ट टाइम में.
R by N equal to Boltzmann constant. So E dash equal to 3 by 2 kBT. 3 by 2 kBT. kB यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. समझ में आ गई बात? या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और केटीजी हम लोग बोल सकते हैं. तो इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? 3 by 2 RT और 3 by 2 KBT. दिस फिनोमिना हेल्ड फॉर ओनली मोनो एटॉमिक गैसेज. किसके लिए ये पूरा का पूरा? मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इक्विप्रिटेशन ऑफ द एनर्जी. क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इक्विप्रिटेशन ऑफ द एनर्जी. दैट लॉ रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम. यू नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? लॉ ऑफ equipretation of energy. लॉ ऑफ इक्विप्रिटेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम. रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम. नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम? रिलेटेड with degree of freedom. क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? All the possible vibrational, translatory and rotational motion that is possible by any molecules of the gases. That is degree of freedom. Now how will related with the law of equipretation of the energy? According to law of equipretation of energy, each degree of freedom has equal energy, and that is equal to 1 by 2 kBT. That is equal to 1 by 2 kBT. हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हर एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. विथ ईच मॉलिक्यूल एनर्जी रिलेटेड दैट इज इक्वल टू 1 by 2 kBT फॉर 1 degree of freedom. If there is degree of freedom is 2, then is 1 by 2 kBT into 2. For 3 degree of freedom, 3 by 2 kBT into 2. For 5 degree of freedom, 5 by 2 kBT into हाफ kBT हो जाएगा ना. जितना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते रहेंगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू law of equipretation of energy, energy related to each degree of freedom, always equal, and it is equal to 1 by 2 kBT, equal to 1 by 2 kBT. किसके इक्वल होगा? 1 by 2 kBT फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. एनर्जी कितनी होगी? 1 by 2 kBT. फॉर अगर बात करें फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज, मोनो एटॉमिक गैसेज में क्या होगा बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3. और फॉर इसके अंदर भी फॉर्मूला लिखना चाहिए हम लोग. इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F, डिग्री ऑफ फ्रीडम equal to F, then what is the energy? E equal to F by 2 kBT. F by 2 kBT लिख सकते हैं. और मोनोएटॉमिक में F कितना हो गया? 3. F कितना हो गया? 3. कल पढ़ा था इसके बारे में. तो अपने पास इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E equal to 3 by 2 kBT. कितना हो जाएगी? 3 by 2 kBT. अगर बात करें फॉर द डायटोमिक गैसेज कितना होगा बेटा बताओ? फॉर
डाई एटॉमिक गैसेज, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, F इक्वल टू कितना होता है 5, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 kBT, 5/2 kBT। अगर बात करें फॉर ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में क्या होगा बताओ, F इक्वल टू 6 हो सकता है, F इक्वल टू 7 हो सकता है। ये किसके लिए होता है, ट्राइंगल के लिए, और ये किसके लिए होता है, लीनियर रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी आएगी, ये लीनियर की कितनी आएगी 7/2 kBT, और ट्राइंगल की कितनी आएगी, ये ट्राइंगुलर के लिए ये 6/2 kBT, और इसको क्या ले सकते हैं 3 kBT। कोई समस्या यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को भी। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पे जो आती है दैट इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज with degree of freedom, with degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास क्या होता है यू नो, इन एनी गैसेज du इक्वल टू cv dt, cv dt, ये होता है कि नहीं होता है, du इक्वल टू क्या हो गया cv dt, या हम लोग इसको ले सकते हैं डेल्टा u इक्वल टू, या इसको ऐसे ले सकते हो कि डेल्टा u इक्वल टू cv डेल्टा t फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। अब डेल्टा u एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की बात करें यहाँ पे, जो पूरी इंटरनल एनर्जी दैट इज दी यू के किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी, यू किसको रिप्रेजेंट करता है, और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है F/2 RT, F/2 RT। तो डेल्टा u इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा u इक्वल टू F/2, या केबी की फॉर्म में ले सकते हैं F/2 RT लिखो या केबी लिखो, RT तो किसका हो गया, ये हमारे पास जो होती है एवरेज काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और जो केबी लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं बेटा, पर मॉलिक्यूल के लिए लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा यू तो पर मॉलिक्यूल के लेंगे नहीं, डेल्टा यू किसके लिए लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग F/2 RT यूज करेंगे, केबी किसके लिए यूज करते हैं पर मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे F/2 R डेल्टा टी लिख देंगे इसको। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करो बेटा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आएगा बताओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा यू की क्या डाल देंगे हम लोग F/2 R डेल्टा टी इक्वल टू सी वी, डेल्टा टी से डेल्टा क्या हो गया, तो सी वी इक्वल टू कितना हो गया F/2 R, F/2 R। तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, सी पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर होता है, मेयर रिलेशन याद है, मेयर्स याद है, कुछ नहीं है बताओ, ऐसा था Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं क्या, Cp इक्वल टू F/2 R प्लस R। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cp इक्वल टू F कॉमन ले लें पूरे में से, तो क्या बनेगा, तो सॉरी R है ना प्लस, F क्यों लिख रहा हूँ, कॉमन क्या आएगा R कॉमन आएगा, बोल भी नहीं रहे तुम लोग यार। R इक्वल टू क्या आ जाएगा F/2 प्लस 1, एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, Cp इक्वल टू R F प्लस 2 अपॉन 2, ये हो गया। अब हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या होता है पता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या होता है कुलदीप, गामा, गामा नाम सुना है कुलदीप, क्या होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दैट इज गामा। यू नो व्हाट इज गामा, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। जब मैंने एडिबेटिव रिलेशन प्रूव कराया था
तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड और नॉट? यूज हुआ था उस टाइम में। तो गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी. सो हियर when we divide this equation number 3 or this equation number 4, let so equation number 4 divide by equation number 3, तो क्या आएगा? Cp अपॉन Cv इक्वल टू F प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन F अपॉन 2 इंटू आर. आर से आर क्या हो गया बेटा? 2 से 2 क्या हो गया? तो Cp अपॉन Cv क्या हो गया? गामा इक्वल टू F प्लस 2 अपॉन F. अब जब अपने पास एडिबैटिक प्रोसेस दे रखा होगा उसमें आपको गामा डिफाइन नहीं होगा, आपको खुद पता करना पड़ेगा. फॉर मोनोएटमिक, मोनोएटमिक के लिए कितना होगा बताओ? फॉर मोनोएटमिक क्या होगा? फॉर मोनोएटमिक, मोनोएटमिक गैस में क्या होगा बताओ बेटा? F इक्वल टू 3, तो गामा इक्वल टू Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 R. Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा? F प्लस 2 है ना, तो 5/2 R. और गामा कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 5/3. और डायटोमिक कितना होगा? और डायटोमिक F इक्वल टू 5, Cv इक्वल टू 5/2R, Cp इक्वल टू 7/2 हो जाएगा. और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? F/2 7, F प्लस 2 है ना, तो 5 प्लस 2 7/5, 7/5. इस तरह से कुछ भी दे रखा आप निकाल सकते हो बेटा, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? पक्का? अब यहाँ पे एक होता है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ. ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ होता है फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड. ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ. This law is for specific heat of solid. Specific heat of solid. So specific heat of solid. Specific heat of solid के लिए डिफाइन करता है. According to this law, for the each solid, for any kind of solid, specific heat nearby remain constant. Specific heat nearby remain constant and that specific heat equal to 3R. किसके इक्वल होती है? 3R के इक्वल होती है. For any solid specific heat is nearly constant and equals to 3R. किसके इक्वल होती है? 3R के इक्वल होती है. ठीक है, सभी सॉलिड्स के लिए, कैसा भी सॉलिड्स हो. कैसे होती है प्रूव कर सकते हैं? यू नो, फॉर एनी सॉलिड वी हैव, सॉलिड के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं इसको? तो कोई भी मोशन करेगा, 3 ट्रांसलेटरी प्लस 3 रोटेशनल मोशन होते हैं सॉलिड के अंदर. 3 ट्रांसलेटरी प्लस 3 रोटेशनल मोशन. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ द सॉलिड, U इक्वल टू 3/2 RT प्लस 3/2 RT फॉर 3 ट्रांसलेटरी मोशन एंड फॉर 3 रोटेशनल दैट इज 3/2 RT. तो टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ बताओ? ये 6/2 RT, 6/2 RT. तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ? कितना हो गया? 3RT. ये हुआ. तो U इक्वल टू क्या होता है? CV इंटू डेल्टा टी. CV इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग. तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? या इसको ऐसा लिख दीजिए, DU इक्वल टू या डेल्टा U इक्वल टू, ताकि डेल्टा U यहाँ पे डेल्टा टी की फॉर्म में लिख दो. तो CV इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी. तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3R. इसको लाएगा बेटा ये 3R. ठीक है. इसी लॉ का यूज हम लोग कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर.
specific heat of water. वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा बताएं? इसको नॉर्मली होती है 9R. किसकी इक्वल होती है? 9R. सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर एज ए सॉलिड पार्टिकल. वाटर के मॉलिक्यूल कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सॉलिड. वाटर कैन बी, वाटर मॉलिक्यूल कैन कंसिडर एज सॉलिड स्पेयर. ठीक है. तो वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? फॉर्मूला होता है H2O. क्या होता है? ये 3 एटम. फॉर द 1 एटम स्पेसिफिक हीट इज 3R. सो फॉर 3 एटम 9R हो जाएगी. तो फॉर टोटल 3 एटम्स, फॉर 1 एटम, फॉर 1 atom it is 3R. So for 3 atom that is equal to 3 into 3R, it is equal to 9R. So for the water specific heat is equal to 9R. कितनी होगी? 9R. समझ में आ गई बात? वाटर की स्पेसिफिक हीट कहते हैं. बट हियर वन प्रॉब्लम आर देयर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज नॉट कांस्टेंट. इट इज ए स्पेशल केस. इट इज ए स्पेशल केस. Special heat, it is a special case. Specific heat of water is not constant. Specific heat, specific heat, specific heat of water is not constant. वाटर की स्पेसिफिक क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती है. कांस्टेंट नहीं होती है. इट वेरी विद द टेम्परेचर. इट वेरी विथ, इट्स वेरी विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ क्या करेगी बेटा? वेरी करेगी. सो दिस स्पेसिफिक हीट 9R, 9R इज इन रेंज ऑफ, इन रेंज ऑफ 14.5 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. इसके बीच की ये रेंज होती है. उसके अलावा ये पे फिक्स नहीं होता. जो वाटर का स्पेसिफिक हीट ग्राफ बनता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए बात करें हम लोग, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट देखें सीवी की और यहाँ पे टेम्परेचर लें, तो स्पेसिफिक हीट कुछ इस तरह से वेरी करती है. ये जो मिनिमम एटमॉस्फेयर आती है दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. किसके ऊपर आती है? 40 डिग्री सेल्सियस. जीरो पे स्पेसिफिक हीट ज्यादा डिग्री, इसके बाद डिक्रीज होती और वापस से 40 डिग्री के बाद क्या आएगी आपकी? इंक्रीज स्पेसिफिक हीट होना. सो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है किसकी? वाटर की. किसकी प्रॉपर्टी है? स्पेशल वाटर की प्रॉपर्टी है. और नॉर्मली जो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, दैट स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 9R. किसके इक्वल होगी? 9R. ठीक है. ये ड्यूलॉन्ग पेटिट का लॉ सॉलिड ने दिया था, उस सॉलिड के बेस में हमने वाटर की निकाल. समझ में आ गई बात यहां तक? नाउ वी हैव वन टॉपिक दैट इज मेन फ्री पाथ. मेन फ्री पाथ. मेन फ्री path. So actually, gas molecules that is regularly move in such a way like this. गैस के मॉलिक्यूल ऐसे मूव करेंगे नहीं करेंगे? गैस के मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते हैं. दिस इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन. क्या बोलते हैं इसको? ब्राउनियन मोशन. ठीक है. ब्राउनियन मोशन इसको बोला जाता है. ठीक है. जिगजैग मोशन होता है, जिगजैग को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. जिगजैग जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन को इसको बोला जाता है. ये एक इस टाइप का मोशन होता है. अब ये जो अलग अलग पाथ के अंदर यहां से यहां तक मान लीजिए इस पे स्ट्रेट लाइन में पाथ किया. इसका फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज नोन एज द फ्री पाथ. हमने पढ़ा था ना केटीजी के अंदर कि गैस के मॉलिक्यूल टकराने से पहले एक थोड़े से इंटरवल के लिए क्या करते हैं? एक फिक्स एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? मूव करते हैं. एंड दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज द फ्री पाथ. क्या बोलते हैं उसको? फ्री पाथ बोलते हैं. तो यहां से ये लैम्बडा 1, इधर से लैम्बडा 2, इधर से लैम्बडा 3, इस तरह से जाते जाते कहां तक गया? ये लैम्बडा n में गया. व्हाट इज द मेन फ्री पाथ? मेन फ्री पाथ, mean free path that is equal to lambda 1 plus lambda 2 dash 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 lambda n upon n.
कुछ इस तरह का होगा। ऐसे निकालें नहीं निकालेंगे बताओ? मीन निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा है ना आपने, या कुछ और पढ़ा है? क्या रे, मीन तो ऐसे निकालते हैं, मीन तो ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं गैस का मॉलिक्यूल जो हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, एक ऐसा होगा एक पार्टिकल सॉलिड, तो हमारे पास अगर ये किसी एक सिलेंड्रिकल पार्ट से मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल इसका यहाँ पे लेंगे हम लोग ऐसे, एक पार्टिकल हम लोग इसका यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे। तो ये जो रेंज रहती है, पूरा एक सॉलिड जो बनता है यहाँ से यहाँ तक, जो अपने पार्ट देखें, एक डायमीटर डी का हमने एक सिलेंडर लिया है। किस डायमीटर का? डी का हमने एक सिलेंडर लिया है। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है, एक गैस के मॉलिक्यूल डायमीटर कितना है? डी है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं? मूव करना चाह रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं? इस सिलेंडर में मूव करना चाह रहे हैं। जब ये मूव करेंगे तो ही उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पाथ बनेगा, तो ही उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पाथ बनेगा। हम लोग मान लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एन ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं हम लोग? एन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन वॉल्यूम, जो हमने शुरू में पढ़ा था, पता है, याद है? जब प्रेशर निकाला था तो भी उसको कुछ ऐसे ही किया था। गिवन वॉल्यूम टोटल पार्टिकल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इंटू क्या होगा? वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, क्या फॉर्मूला बेटा बताओ? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हैं? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू, एरिया इंटू लेंथ। हाइट बोल तो लेंथ बोल तो बात है कि, अब मान लीजिए यहाँ पे एरिया जो है, ये पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में बात करें, ये एरिया कितना होगा? या सिलेंडर का एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनेगा बताओ? तो इसकी रेडियस बन रही है यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? डी है। रेडियस कितनी है? डी। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो तो एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू, एरिया किसके इक्वल होगा? ए एरिया इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज द एरिया। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन इक्वल टू एन इंटू पाई डी स्क्वायर। अब यहां से हमें निकाले लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। अगर ये पार्टिकल लगातार v स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है? v स्पीड से डेल्टा टी के लिए मूव करेंगे, तो टाइम कैसे निकालेंगे बेटा बताओ? डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज पाथ, हाउ वी विल फाइंड एवरेज? कैसे एवरेज फाइंड करेंगे बताओ? क्या रे, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये चीज निकालनी थी कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीन फ्री पाथ टाउ बोल दीजिए, दैट इज टोटल डिस्टेंस लैम्डा 1 प्लस अप टू लैम्डा डिस्टेंस, तो वो तो एल ही हो गई। वो तो क्या हो गई? एल, दैट इज वी इंटू डेल्टा टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या है? एन इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी। वी इंटू डेल्टा से वी डेल्टा भी क्या हो गया? तो क्या बचा? टाउ इक्वल टू 1/n पाई डी स्क्वायर। पर एक्चुअल में ये नहीं होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, बट बाय कैलकुलेशन वी गॉट, क्या मिलता है कैलकुलेशन से? टाउ इक्वल टू मीन फ्री पाथ दैट इज 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, 1/√2 n पाई डी। दिस इज द मीन फ्री पाथ, दिस इज द मीन फ्री पाथ। ये किसके इक्वल है? मीन फ्री पाथ के इक्वल है। अब मैं यहां पे ऐसे कर दूं क्या इसको, कि टाउ इक्वल टू m/√2 mn इंटू पाई डी स्क्वायर, mn इंटू पाई डी स्क्वायर। mn क्या हो गया? टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है?
टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। सो टाउ इक्वल टू एम एन इक्वल टू क्या आपके पास, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम एन इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, and that is equal to density rho, that is equal to density tau equal to m upon root 2 rho pi d square. This is the formula for mean free path, formula for mean free path. आगे चाहो तो और भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, टेम्परेचर और आर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। रो को हम लोग टोटल मास अपॉन वॉल्यूम लिखें तो उसके अकॉर्डिंग और क्या कर सकते हैं अपन, चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे टाउ भी कम होगा, टाउ क्या होगा, कम होगा, क्यों, कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पर वहां पे दो कई सारी चीजें फैक्टर करती, तो उसको बाद में देखेंगे। यहां तक आप लोग इतना देखिए कि ये मीन फ्री पाथ का आपके लेवल का इतना ही है, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थ्योरेटिकल पार्ट दैट इज ओवर, नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, okay, so that's all for this thing, see you in next lecture at same time.